الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أياما معدودات. صدق الله العظيم. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے روزوں کے احکامات کو ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی تسلی کے لیے فرمایا کہ ایام معدودات، یہ چند دن ہی تو ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری تسلی کے لیے کہ یہ ذہن میں رکھو کہ کوئی سارا سال 365 دن روزے نہیں رہنے. ایام معدودات، یہ چند دن ہیں گنتی کے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں رمضان شریف چلا ہی جانا ہے. اس لیے جب جو موقع مل رہا ہو اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس کے مطابق صحیح وقت گزاریں تاکہ وہ وقت آپ قیمتی بن جائے. سورۃ البقرہ میں جہاں اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو روزے کی فرضیت بیان فرمانے کے بعد تاریخ کی طرف اشارہ کیا. تاریخ بتانے کے بعد آخر میں اس کا مقصد بتا دیا کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی، گناہوں سے بچنے کی مشق پیدا کرنا مقصود ہے. اور آگے ایام معدودات کے ساتھ تسلی بھی دے دی کہ تھوڑے دن ہیں. اس کے بعد آگے کچھ اللہ رب العزت نے روزے کے احکام بھی ارشاد فرما دیے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو، ایسا بیمار کہ اگر روزہ رکھے گا تو بیماری یا بڑھ جائے گی یا پھر لمبی ہو جائے گی یا سخت ہو جائے گی، اور یا پھر ایسے سفر پر ہو کہ جس میں اس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو رہا ہو، تو پھر دوسرے دنوں کے اندر اس کا قضا کیا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے. تو آگے چند آیات تک روزے کے احکامات چل رہے ہیں. تو آج ہم تھوڑے روزے کے جو ہے وہ اہم ضروری احکامات عرض کریں گے، کیونکہ جس طرح حلال کمانا اور حلال کھانا قرآن کا پیغام صحیح رکھنا، اس کے شرائط، اوقات اور اس کی جو ترتیب ہے وہ ساری کی ساری یہ بھی پیغام قرآن کا حصہ ہے. اللہ رب العزت نے باضابطہ طور پر روزے کی تفصیلات ارشاد فرمائی. تو ان میں سے پہلی بات تو یہی کہ اگر ہماری بیماری ایسی ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو روزے کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہے، یا اگر کوئی ماں صاحب اولاد ہے تو اس کا روزہ اس کی جان کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے یا اس کے معصوم بچے کے لیے. یہ اسی طرح اگر کوئی بہت زیادہ ضعیف ہے، بیمار ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، روزہ اس کی بس میں نہیں ہے، تو اس وقت جو ہے وہ روزہ فی الحال موقوف کرنا ہے اور بعد میں اس کو قضا کرنا ہے. اور سفر کی حالت میں بھی یہی حکم ہے کہ سفر شرعی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے سفر کے حوالے سے فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر آپ روزہ رکھ لیتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہو جائے گا. چھوڑ کر قضا کرنے کا وہ مزہ نہیں ہے جو بر وقت ادا کرنے کا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص ایسی عمر کی حالت کو پہنچ گیا ہے یا بیماری اس کی ایسی ہے جو تا حیات ہے، اس کا اندازہ یہ ہے کہ یہ آج میں، کل میں، اس سال، اگلے سال، 6 ماہ، 4 ماہ، 8 ماہ میں بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے، اور وہ بیماری ایسی ہے کہ وہ روزے کے اندر مانع ہے، روزہ اس کے ساتھ رکھنا دشوار ہے. جیسے بعض لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے اور سانس کو بحال رکھنے کے لیے انہیلر ان کو پمپ سے، پریشر سے اپنے حلق کے اندر اس کو کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ اس کے دوائی کے قطرات اور ذرات اس کے حلق میں پڑتے ہیں تو پھیپھڑوں پر اثر کرتے ہیں، تو اس کے لیے سانس لینا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح بعض دفعہ شوگر جو ہے وہ اس حالت کو پہنچ جاتی ہے کہ ہر 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کھایا جائے تو اگلے 3 گھنٹے زندہ دشوار ہو جائے گا. اور بعض ایسی بیماریاں ہیں جس کے اندر دوا کا دورانیہ یا اس کا تسلسل ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس میں ناغہ کریں گے تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ جان لیوا ثابت ہو جائیں گے. اس حوالے سے فقہ نے فرمایا کہ ایک ڈاکٹر ایسا ہو جو ذمہ دار بھی ہو، اپنے فن میں ماہر بھی ہو، اس کے بعد یہ ہو کہ اگر یہ شخص روزہ رکھے گا تو یہ اس کی صحت کے لیے مضر ہے، جان کے لیے خطرناک ہے، اور روزے رکھنے کی صورت میں اس کی بیماری یہ تو بہت زیادہ سخت ہو جائے گی یا بہت زیادہ طویل ہو جائے گی. تو ڈاکٹر ہو ماہر
اور ساتھ ساتھ دیندار بھی، اس کی رائے یہ ہو کہ روزہ رکھے تو پھر روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ اور اگر یہ صورتحال تاحیات ہو تو پھر فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جو لوگ روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو وہ پھر ایک مسکین کو فدیہ ادا کر دیں، یعنی ایک روزہ فدیہ۔ اور ایک روزے کا فدیہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ صدقۃ الفطر کی مقدار ہوتی ہے، ایک ایک کا صدقہ جو ہے، جیسے 2 کلو گندم، تو اتنا ایک روزے کا فدیہ ہے۔ لہٰذا اگر ایک آدمی سارا مہینہ روزے نہیں رکھ پائے گا تو وہ 30 دنوں کے 30 صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ وہ شروع میں بھی دے سکتا ہے، درمیان میں بھی دے سکتا ہے، آخر میں بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے دینا لازم ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو اس کے حوالے سے مفسرین نے فرمایا کہ ابتدا میں جو بندہ روزہ رکھ بھی سکتا تھا اس کے لیے بھی گنجائش تھی کہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے لیکن ساتھ ساتھ روزے کا فدیہ بھی دے سکتا ہے، تو وہ چاہے تو روزہ رکھ لیتا، چاہے تو فدیہ دے دیتا۔ لیکن بعد میں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ والی آیت آ گئی، اس نے لازم کر دیا کہ جو روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر روزہ ہی رکھے گا، وہ روزے کی پیمنٹ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بیمار اور معذور کے لیے فدیہ ہے اور تندرست کے لیے روزہ۔ اور اور روزہ اگر اپنے وقت پر نہ رکھا جائے تو حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے اور بعد میں ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے اجر و ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب وہ رمضان کے علاوہ میں رکھے گا تو وہ رمضان کے علاوہ ہوگا، رمضان میں نہیں ہوگا۔ اور اگر رمضان میں رکھے گا تو رمضان میں تو آلریڈی جس دن رکھے گا اس دن کا اپنا جگہ روزہ فرض ہے، لہذا رمضان کا چھوٹا ہوا ٹوٹا ہوا روزہ دوبارہ کبھی رمضان میں نہیں رکھا جا سکے گا، لہذا وہ اجر و ثواب اور برکت حاصل نہیں ہو پائے گی۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ بہت دفعہ مسائل لوگ پوچھتے ہیں اور اس میں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی غلطی کی وجہ سے روزہ توڑ بیٹھا ہے۔ تو عام طور پر ہمارے 30 روزے جب یا 29 ہم رکھتے ہیں تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کمی بیشی میں ہم سے ایک آدھ روزہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے عید کے بعد ایک تو 6 روزے ہیں شوال کے جو وہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو سارا سال روزہ رکھنے کا اجر عطا فرماتا ہے، لیکن ایک آدھ روزہ جو ہے ہم رمضان شریف میں سے بطور قضا بھی رکھ لیے کریں احتیاطاً کہ یا اللہ اس رمضان کے روزوں میں اگر مجھ سے کوئی ایسی خطا ہوئی ہو جس سے میرا کوئی ایک آدھ روزہ ضائع ہو گیا ہو، مجھے معلوم نہ ہو، تو یا اللہ یہ اس نامعلوم روزے کی طرف سے اس رمضان کا بطور قضا میں ایک روزہ ادا کرتا ہوں۔ اب اگر بالفرض ہمارے روزے سارے صحیح ہوئے تو یہ اللہ کے یہاں بطور نفل جمع ہو جائے گا، اور اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو ہم اس کو ادا کر پائیں گے، ہمارے سر پہ قضا کھڑی نہیں رہے گی۔ ابھی ہم تھوڑی دیر میں انشاءاللہ وہ چیزیں پڑھتے ہیں جو روزے کو توڑتی ہیں، اور وہ بھی میں عرض کرتا ہوں جن کی وجہ سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید روزہ ٹوٹا ہوگا لیکن ٹوٹا نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے یہ میں نے احتیاطاً عرض کیا کہ بہت سارے لوگ ہیں، جیسے ہم وضو کر رہے تھے، منہ میں پانی بھرا کلی کے لیے، تو ہمیں احساس ہوا کہ وہ میرے حلق میں جا کر پانی لگا ہے، اب ہم نے تھوک دیا، لیکن یہ روزہ یاد رکھتے ہوئے اگر حلق تک پانی پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو ہمیں صرف ناک کو گیلا کرنا تھا، لیکن ہم نے ناک میں اتنا پانی چڑھا دیا کہ نرم حصے تک اگر پانی چلا جائے تو اس کا دماغ میں پہنچنا سمجھا جاتا ہے، اور دماغ میں یا پیٹ میں پانی کا پہنچنا روزے کو توڑ دیتا ہے۔ اور اسی طرح کبھی کبھار سحری کھاتے ہوئے ہم 2 4 لقمے یا ایک آدھ چائے کا گھونٹ یا پانی ایسے وقت میں پی بیٹھتے ہیں جب اللہ کے علم میں صبح صادق داخل ہو چکی ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تو اذان نہیں ہوئی یا ہو رہی ہے، تو اس طرح
चंद गलतियों से हमें कभी कभी अपने रोजे जो मशकूक महसूस होते हैं, तो हम अगर उनको दुरुस्त रख लेंगे, एहतमाम कर लेंगे, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। जो फ़राइज़ हैं उनका अपना एक पूरा प्रोटोकॉल है। अगर वहाँ कहीं भी हमसे कोई शय मिस होती है, तो फिर वो जो फर्ज होता है वो उस तरह अदा नहीं होता जैसे वो फर्ज होता है। इस वजह से हम जब फर्ज अदा किया करें तो उसका पूरा एहतमाम, पूरी तवज्जो, पूरी फिक्र, और पूरे तौर पर हमें बेदार मगजी और समझदारी के साथ अंदाज़ा हो कि हम कहाँ ठीक हैं, कहाँ गलत हैं। खैर है, कोई बात नहीं, हो गया होगा, तो फिर तो क्या हुआ, मैंने तो पढ़ा है ना, मैंने तो कोशिश की ना, मैं तो मस्जिद गया ना, मैं औरों से तो अच्छा हूं ना, कि कम से कम गलत ये सही किया तो है। ये जस्टिफिकेशन या तो वसाविस होते हैं, या फिर हमारी सुस्ती होती है, जो कि माफी तलाफी का सबब नहीं बन सकती। हाँ, गलती मानकर तो हो सकता है कि हम उसको दुरुस्त कर लें, लेकिन अगर हम अपने गलत को सही बनाए फिर रहे होंगे तो वो कभी भी सही नहीं हो सकेगा। जो बच्चे पाबंदी से स्कूल जाते हैं वो जाते ही जाते हैं, और जो थोड़ा सा सुस्त होते हैं वो ये जस्टिफिकेशन देते हैं, कोई बात नहीं है, मैं नहीं गया तो क्या होगा, बहुत सारे लोग दुनिया में वो भी तो हैं जो नहीं पढ़ते, मैं कौन सा मर जाऊंगा, नौकरी नहीं भी लगेगी तो क्या हो जाएगा। वो हजार बातें करेंगे पर यूनिफॉर्म पहन के वैगन में नहीं बैठेंगे। लेकिन क्या ख्याल है कि उन लोगों के इन बहानों से तालीम याफ्ता हो जाते हैं, या वो बड़े होकर अपने आप को जवाब दे पाएंगे कि भाई मैं दिन बचपन में क्या बहाने मारता था। तो ये जब हमारा सांस उखड़ जाना है तो फिर हमें वहाँ कोटा खरा साफ हो जाना है, तो तब हमें एहसास रहेगा कि हमने क्या क्या फर्क पड़ जाना था, मैं नमाज सही ही पढ़ लेता तो क्या फर्क पड़ जाता, मैं रोजा ठीक ही रख लेता तो वहां जब हमें लगेगा कि हमारा टाइम भी जाया हुआ और फायदा भी नहीं हुआ, तो फिर अफसोस रहेगा कि रख ही रहा था तो सही रख लेता। तब हम कहेंगे कि भाई अब मैंने रखा भी और सजा भी भुगत रहा हूँ गलत रखने की, इसलिए हमने जरा ख्याल करना है। तो सुबह सादिक जो है वो एक बाउंड्री है, वाल है, उससे पहले पहले हमारा रात होती है, और सुबह सादिक के रोशनी के साथ ही दिन दाखिल हो जाता है, लिहाजा सुबह सादिक से पहले पहले रोजे को बंद करना जरूरी होता है। तो अगर कोई शख्स इसी तरह जब गुरूब आफ्ताब होगा, वातिमुस्सियाम इलल लैल, गुरूब आफ्ताब तक रोजे को पूरा करना जरूरी है। अगर सारा दिन रोजे रखा, 16 घंटे के क्यों ना हो, और सिर्फ 7 मिनट, ये 6 मिनट, ये 5 मिनट, ये 4 मिनट, या 2 मिनट पहले हमने खोल लिया कि चले यार बहुत है, 16 घंटे तो हो गए हैं ना, तो 5 मिनट न सही तो क्या हुआ, नहीं, 5 मिनट न सही से तो क्या हुआ कि ये होगा कि वो शायद टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, जाया हो जाएगी। तो लिहाजा सहरी और इफ्तारी के औकात का इसके अंदर बहुत ज्यादा एहतमाम करना जरूरी है। तो अगर हम सहरी लेट कर लेते हैं तो हमारा रोजा हुआ ही नहीं, और इफ्तारी जल्दी कर लेते हैं तो होया हवाया टूट जाएगा। इसके अलावा दिन के औकात में जब हम रोजे से होते हैं, तो अब हम थोड़ा सा नोट कर लें कि किन किन चीज़ों से रोजा टूटता है, किन किन चीज़ों से नहीं टूटता। हमारे मेम्बरान में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ज्यादातर चीजें जानते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, कुछ की जान पहचान ताज़ा हो जाएगी। और दूसरा ये कि कभी कभार सुनी सुनाई बातें बड़ी पुरानी हो चुकी होती हैं, तो काउंटिंग वाइज उनको ज़रा ताज़ा करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले जो चीज़ रोजे को तोड़ती है वो है जानबूझकर खा लेना या पी लेना। नंबर दो, जो चीज़ रोजे को तोड़ती है वो ये है कि कोई दवा, खास तौर पर जो ताकत की हो, जैसे विटामिन वगैरह वाली दवाएं होती हैं, वो अगर हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई भी बतौर खुराक चीज या बतौर इलाज चीज जो इस्तेमाल होती हो, अगर हम वो खा लेते हैं या पी लेते हैं मुंह के जरिए से, तो उससे रोजा टूट जाता है। तो खाने के अंदर तमाम किस्म की खुराक शामिल है, वो चने हो सकते हैं, सालन, चाय, चावल, रोटी, यहाँ तक कि अगर मुंह में फंसा हुआ कोई बड़ा सा पीस अगर हम रोजे की हालत में निकल लेते हैं तो वो
भी हमारे रोजे को तोड़ देता है। बाज़ दफ़ा दांतों में खला होता है और हम जबान के जरिए से उसको साफ करके कभी कभार नीते हैं तो वो हमारे रोजे को तोड़ने का बायस बन जाता है। खाना बूझ कर अगर खाते हैं या पीते हैं तो रोजा हमारा टूट जाता है। उसमें चाय हो, शरबत हो, सादा पानी हो, यहाँ तक कि कड़वा पानी ही क्यों ना हो, खारा पानी ही क्यों ना हो, वो हमारे रोजे को तोड़ देता है। इसी तरीके से अगर हम अ, कोई शाय जिस्म में वैसे दाखिल करते हैं किसी और जरिए से जो हमारे दिमाग तक या हमारे मैदे तक पहुंचती है, तो वो भी रोजे को तोड़ देती है। मिसाल के तौर पर नाक के जरिए से अगर किसी आदमी ने खुराक हासिल कर ली या नाक के जरिए से दवा जो है वो अंदर उंडेल ली, तो ये भी रोजे को तोड़ देगा। इसी तरह कभी कभी वो अगर हम लगवाते हैं तो वो भी हमारे रोजे को तोड़ देता है। इसी तरीके से एक होती है कै, वोमिटिंग। तो कै की एक सूरत ये है कि भाई थोड़ी सी आई और हम उगल दी, कुल्ली कर ली, मुंह साफ कर लिया। कभी कभी जाने या अनजाने में ऐसा भी हो जाता है कि कै हमारे मुंह में आई और बेध्यानी में या किसी तरह हमारे हमने वापस निगल ली, तो ऐसी हालत में रोजा जो है वो टूट जाता है। लेकिन अगर वापस नहीं ली, फिर थोड़ी आए, ज्यादा आए, बार बार आए, बहुत ज्यादा आए, तो उससे रोजा नहीं टूटता। बहुत सारे लोग हर रमजान में ऐसा लोगों के साथ पेश आ जाता है कि तकरीबन नाश्ते का जो टाइम होता है, यानी कभी सहरी के फौरन बाद और कभी उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब हम सोकर जागे 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, तो सीने पर एक बोझ, मैदे पर जो है वो जलन, और आखिर में हमें कै आ गई, बड़ी सारी आ गई। किसी ने हमें कह दिया कि भाई रोजा टूट गया है। रोजा नहीं टूटता। लिहाजा कै से रोजा टूटने में सिर्फ एक ही सूरत है कि मुंह के अंदर आई और वापस हमने अंदर खींच ली। इस सूरत में जो है वो रोजा टूटता है, वैसे रोजा नहीं टूटता। तो बहरहाल ये ज़हन में रख लेना है कि हर कै रोजा नहीं तोड़ती, बस एक कै है जो रोजा तोड़ती है, और वो दरअसल वो भी खुराक ही का मामला बन जाता है। इसी तरह जो मियाँ बीवी का आपस में मिलाप है, ताल्लुकात हैं, तो रोजे की हालत में खाना पीना और मियाँ बीवी का आपस में मिलना, जो ऐसा मिलना जो औलाद पैदा करने के जरिए होता है, ये भी रोजे को तोड़ देता है। और इन सारी सूरतों में अगर जानबूझकर हमने खा लिया, जानबूझकर पी लिया, और किसी भी तौर से अगर मियाँ बीवी ने आपस में ताल्लुकात कायम कर लिए, तो इससे रोजा टूट जाता है और ये रोजे की तौहीन होती है, रोजे की बेअदबी होती है। तो इस एक रोजे की कज़ा भी करनी होती है और इस तौहीन और गुस्ताखी का कफारा भी अदा करना होता है, और वो होता है 60 लगातार रोजे मुसलसल, जिसमें कोई कोई नागा ना हो, कोई बीमारी ना हो। इवन के अगर बीच में बड़ी ईद या कोई ईद आ जाती है, तो उस सूरत में भी वो 60 का तसलसल बाकी न रहे, तो वो उस अगला पिछला जाए। इस वजह से अगर 60 रोजे रखने हों तो ईद, छोटी ईद के फौरन बाद शुरू करने चाहिए, कि 60 दिन जो है वो बड़ी ईद से पहले पहले पूरे हो जाए। और अगर हमने शुरू के 10 दिन नहीं रखा, तो अब ना रखें, अब बड़ी ईद कर लें और बड़ी ईद के बाद शुरू करें, और फिर उसके बाद मुसलसल उनको लेके चलते जाएं। हमारी जो माएँ बहनें बेटियां होती हैं, तो जब उनकी उम्र बलागत को पहुंचती है, 12 साल, 11 साल, यानी 10 से अबव जो है, 11-12 साल से उनके माँ बनने तक, माँ बनने से आगे उनकी तकरीबन जो एक सेहतमंद उम्र होती है, तो इसमें माहाना, हर महीने उन्हें कुछ दिन ऐसे आते हैं जिन दिनों में नमाज फर्ज नहीं होती, नमाज उनको माफ होती है। तो अगर रोजा रखने के दौरान ऐसी कैफियत पैदा हो जाए, होने लग जाए, तो इसके साथ ही रोजा फौरन टूट जाता है। तो इसी तरीके से अगर किसी के यहाँ औलाद पैदा होने के बाद भी कुछ दिन तक जो है वो खून आता रहता है, इसे अरबी जबान में हैज़ व निफास कहते हैं। तो इस खून आने से रोजा टूट जाता है।
इस वजह से इस जमाने में रोजा नहीं रखना होता, और इस जमाने के रहे हुए रोजों को बाद में कज़ा करना होता है। लेकिन अगर बिल फर्ज किसी ने रोजा रख लिया था और रोजे के दौरान अचानक उसके साथ ये कैफियत आ जाती है, तो फौरन से रोजा टूट जाएगा। लिहाजा ये रोजा भी उसी रोजे में आ जाएगा जिसको बाद में कज़ा करना है। ये यूं नहीं शुमार होगा कि वो तो मैंने चलो रख लिया था, और ये ऐसे ही इफ्तारी से जरा पहले ये कैफियत पैदा हुई तो मैं कहा चलो खैर है, अब सारा दिन रोजा रखा है तो अब हो गया। नहीं, वो अगर दो लम्हे लम्हा पहले अगर उसका वुजू टूट जाता है तो नमाज टूट जाएगी। इसी तरह अगर ये खून आना शुरू हो जाता है तो रोजा टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर बिलफर्ज किस कोई औलाद कोई खातून औलाद उम्मीद से थी और एन रोजे की हालत में उसने बच्चा जन्म दिया, तो जैसे ही उसका बच्चा पैदा होगा रोजे की हालत में, तो साथ रोजा भी टूट जाएगा। पहले हम लोग बस औक़ात असाज़ा से पढ़ते थे, या हमारी बहुत सारी बहनें अपनी बाजियों से जाकर कुरान पाक पढ़ती थीं, तो वो कुरान पाक पढ़ाने वाली ख़वातीन या बड़ी असाज़ा वो बच्चियों को ये बातें समझा देती थीं। अब ना हम कहीं पढ़ने जाते हैं, ना कहीं से सुनते हैं, और जो हमारा कोर्स चल रहा होता है क्लासरूम में, तो वो हमारे असातिज़ा भी या जानते नहीं होते, तो या फिर उनके यहाँ जो सब्जेक्ट है वो पूरा होता है, उसके अंदर ये मसाइल नहीं आते। तो आजकल के ज़माने में इस तरह के मसाइल में काफ़ी कुताही हो जाती है। तो जो हमारी माँ बहनें बेटियां सुन रही हैं, वो भी, और जो हमारे भाई सुन रहे हैं, अगर उनके घर में ऐसी सूरत हाल हो तो वो इन चीज़ों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। इसी तरीके से कुछ चीज़ें और हैं। उनमें से एक ये भी फुक़हा ने लिखी है कि अगर बिल फर्ज खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला महफूज फरमाए, एक शख्स सुबह रोज़ा रखा और वो हालत ईमान में था, रोजे के दौरान उसने कुछ ऐसी बात कर ली, कोई ऐसा ख्याल अपना लिया, या किसी बंदे से मिला और उसने उसका आइडिया अडॉप्ट कर लिया, उसका नजरिया बदल गया, और अल्लाह उससे कलमे कुफर अदा हो गया, या उसका ख्याल कुफरिया हो गया, जिसकी बिना पर वो हालत ईमान में नहीं रहा, तो ईमान जाते साथ ही रोजा भी टूट जाएगा। अब अगर बिल फर्ज एक जमाना ऐसा आए कि बाद में अल्लाह उसको तौफीक दे दे, तो उस वक़्त वो उस दिन के रोजा रखेगा जिस दिन रोजे की हालत में वो ईमान से खारिज हुआ था। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। और इसी तरह जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि भाई कुछ है खा लेना या पी लेना, इसी तरह कोई नशा आवर चीज बंदा इस्तेमाल कर लेता है तो उससे भी रोजा टूट जाता है। और इसी तरह कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिनसे रोजा टूटता नहीं, लेकिन हमें कभी कभी लगता है कि रोजा टूट गया है, या लोग हमें गुमराह करने के लिए कह देते हैं कि ये हमने तो सुना है रोजा टूट जाता है, बस अब आपका रोजा गया, बस अभी आप खा पी लो, कुली शुली कर लो, कोई नहीं, खैर है, अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह बड़ा है। तो हमारा पहले नहीं टूटा होता, लेकिन अब हमारी उस लाइल्मी, गलत गाइडेंस या जाहिल के मशवरे की वजह से हम अपना रोजा जाया कर बैठते हैं। तो उनमें से एक चीज ये भी है कि अगर फर्ज करे भूल कर हमने कुछ खा लिया या पी लिया, बिल्कुल वहमो गुमान में भी नहीं रहा कि मेरा रोजा है, और हमने रज के खा लिया, थोड़ा खा लिया, ज्यादा खा लिया, ये पी लिया, उस वक्त नहीं ख्याल आया, बाद में ख्याल आया, तो ये भूल जो है अल्लाह ने माफ कर दी है। लिहाजा अगर भूल कर बिल्कुल नसीब मनसिया भूल कर कुछ खा पी लें तो रोजा जाया नहीं होता, रोजा नहीं टूटता। इसी तरीके से जो मैंने अर्ज किया था कि कै आ जाए, उल्टी आ जाए, और आई और हमने गिरा दी, फेंक दी, तो उससे भी रोजा नहीं टूटता। लिहाजा सुबह सवेरे भी आ जाए तो भी रोजा नहीं टूटता। बाद दफा सुबह सवेरे आ जाए, कहते यार अभी सारा दिन आपने कुछ नहीं खाना पीना, अब आपको उल्टी आ गई है, पेट खाली हो गया है, तो ऐसा ना हो कि आप मर जाओ। ऐसे कोई नहीं मरता। लिहाजा कै आने से रोजा नहीं टूटता।
इसी तरीके से अगर सख्त बुखार हुआ और हमने गोश्त के अंदर इंजेक्शन लगवा लिया तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। लिहाजा अगर बिल फर्ज कभी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही हो, बुखार हो जाए, तो सिर्फ इंजेक्शन है जो रोज़े की हालत में इस्तेमाल किया जा सकता है और कुछ नहीं। इसी तरीके से कभी कभी हमें आंखों के अंदर ड्रॉप्स डालने होते हैं, तो आंखों में ड्रॉप डालने से रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरीके से अगर कान में कोई मसला हो थोड़ा बहुत, उसके अंदर भी ड्रॉप डालें तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा ब्लड लेता है, तो थोड़ा सा खून देने से, खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। लिहाजा अगर हमने थोड़ा सा खून दे दिया है तो रोज़े को इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बाज दफ़ा डॉक्टर लोगों को बिलम नहीं होता, कहते हैं आपका रोज़ा है, अच्छा फिर शाम को आना। उनको बोले भाई सर टेस्ट अभी ले लें, ब्लड ले लें, टेस्ट कर लें, शाम तक रिपोर्ट भी आ जाएगी, डॉक्टर भी आ जाएगा, तो मेरा इलाज मुआवजा भी हो जाएगा। इसी तरह जब हम मिसवाक करते हैं तो वो गीली हो, खुश्क हो, ताज़ा हो, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। और टूथपेस्ट में चूंकि जायका होता है तो कोशिश तो करें कि सहरी से पहले पहले हो जाए, लेकिन बिल फर्ज कभी अगर मुंह खराब हो रहा हो तो थोड़ी सी पेस्ट के साथ अगर किसी ने कर लिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन ये थोड़ा सा नामुनासिब और मकरूह तंजीही में शुमार होता है। तो अगर बिल फर्ज कभी रह जाए तो बिना पेस्ट के बुर्श किया जा सकता है, उससे दांत भी साफ हो जाएंगे और मुंह में जायका भी नहीं जाएगा और हम शक शुबे का शिकार भी नहीं होंगे। इसी तरह परफ्यूम है, खुशबू है, वो हल्की हो, तेज हो, बहुत तेज हो, हर सूरत जो है वो रोजा नहीं टूटता। इसी तरह वुजू कर लेना, गुस्ल कर लेना, जिस्म ठंडा कर लेना, ये भी रोजे को नहीं तोड़ता। बस मुंह के अंदर जो है पानी नहीं जाना चाहिए। इसी तरह जैसे मैंने आंख के बारे में अर्ज किया था कि दवा डालने से रोजा नहीं टूटता, तो सुरमा लगाने से भी रोजा नहीं टूटता। और इसी तरह थोड़ा बहुत अगर कहीं हम बैठे हुए हैं, धुआं जो है वो या गर्द, खाक, आंधी वगैरह चल रही होती है, तो ये खाका या मट्टी या धूल या आंधी के जैसे जायका हमें हलक में महसूस हो तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरीके से जब इंसान शादीशुदा जिंदगी गुजार रहा होता है तो उसमें कभी कभार मियाँ बीवी आपस में इकट्ठे बैठते हैं, एक दूसरे को हाथ लगाते हैं, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर हमें इस बात का अंदेशा हो कि अगर हम आपस में इकट्ठे बैठेंगे, एक दूसरे के करीब जाएंगे, तो हमारी ख्वाहिशात बढ़ेंगी और हम इस ख्वाहिश में आगे तक चले जाएंगे, तो उस सूरत में फिर इब्तदाई काम भी ठीक नहीं होते। लेकिन बहरहाल बाहर दो सूरत, अगर बिल फर्ज अपनी बीवी से बंदा बात करता है, उसको देखता है, उसके साथ जिस्म लगाता है, तो हाथ लगाता है, बुसा देता है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। जो चीज़ सही हो उसको सही बताना चाहिए, जो चीज़ मना हो उसको मना ही बताना चाहिए। एहतियातन इतनी सख्ती भी नहीं होनी चाहिए कि जो इस्लाम में नहीं रखी और हम रखना शुरू कर दें, और इतनी नरमी भी ठीक नहीं है कि इस्लाम ने मना किया और हम इजाज़त देने लग जाएं। नहीं, जो बात सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है। एहतियातन हम सही को गलत कह दें, गलत को सही कह दें, ये गलत बात है। बताने वाले ने अपनी कब्र में जाकर उस बात का जवाब देना है। बहुत सारे लोग हैं वो ऐसे चौधरी बन के, पढ़े लिखे से बन के ऐसे मसाइल निकाल रहे होते हैं जैसे पता नहीं इस जमाने में अल्लाह ने इनको इख्तियार दे दिया है कि जो तुम कह दोगे वो इस्लाम बन जाएगा। तो जो मुस्तनद आलिम हो, उलमा की सोबत में हो और उसका अमली जिंदगी के अंदर भी ईमान और अमाल हों, उनसे मसाइल और दीन सीखना चाहिए। जो बाज आवारा मिजाज होते हैं, अयाश मिजाज होते हैं, या ऐसे टिकटॉकर से होते हैं, तो उनका और ही कोई मिशन मकसद होता है, तो उनसे हमें दीन नहीं सीखना चाहिए। वो कुछ बातें अच्छी भी सिखा देते हैं और बहुत सारी बातें गुमराही की भी दे देते हैं। तो बहरहाल जो चीज़ें रोज़ा तोड़ने वाली थी वो भी मैंने अर्ज कर दी, और जिनसे रोज़ा नहीं टूटता लेकिन हमें लगता है कि शायद टूट गया हो, वो भी मैंने अर्ज कर दी। इनको हम समझ भी लें, याद भी कर लें, फिर याद रख लें, और इसको बातों बातों में औरों तक जो है पहुंचा भी दें, ताकि कोई बात सुन लेगा तो वो गुनाह से इंशाअल्लाह बच जाएगा। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए, और
اسی طرح محبت اور شوق کے ساتھ جو ہے وہ دین داری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کل انشاءاللہ ہم تھوڑا سا